Bon après-midi, messieurs. Bon après-midi. Buon après-midi, messieurs. Bon après-midi. Como ça va? Buon Ça va bien, après-midi, merci. sir. Bon après-midi. Kamal, where were you for last 2, 3 days? I told you to be regular. Sir, there is network issue, sir. Today there is no network issue. No, sir. तो तुम मुझे डिस्कस How करना is it possible? क्या और क्या Mm-hmm. निकलने यहाँ से Yes, sir. I am saying, how is it possible? Sometimes network comes, sometimes not. Yes, sir. Sometimes it disconnects from yesterday. I have also yesterday, the after before yesterday, I was came to join the class. Mm-hmm. After that, sir, it was disconnected. After that, I have tried. After Where that, do you live? sir, I live in Kusumkheda Architect also. Kusum Khera, though, I don't think there is a network issue. In idea, there is lots of network issues, sir. Idea तो है ही बेकार. Yes, sir. Okay. So in the inside Any at there sir no Geo network also is not available, sir. Proper. okay. Any topic? Any doubt? Ask your doubts, please. Hmm? No doubts. So sir, that one, sir, क्या कहते हैं? It's So that BO and not BOW. Ask your doubts, everyone. सर मे आई टाइप Yes. यस सर Chandan, it's BO and not BOWN. Who is that bar doctors? he is a new person. He is a ex student of DEI. Name? Don't know, sir. We don't know. Tell me your name, please. Bar doctors, who is this? Sir, Suraj. He was saying Suraj Rajput. Speak something. Otherwise, I have to wait for you. What you are writing to see this. Have you learned French earlier on? Hmm? Ask your doubts, please. सर हॉबी को फ्रेंच में कैसे लिखेंगे? हॉबी किसको? हॉबी Hobbies? हॉबीज नहीं हॉबी जस्ट हॉबी Hobbies. एक ही बात हुई ना? हम्म Plural. PASSE कुछ ऐसा Please हमने टाइप type. किया देख लीजिए. नहीं तो नो हॉबी EST S और T जो है होगा वो उसमें और आएगा, स्मॉल लेटर्स में स्मॉल. आएगा. यस सर. बाकी सही गलती से. बाकी सही है सब. Yes, sir. बाकी सब सही है. Yes, everything is correct. What is your name? NOM means first name or second name? Please tell.
What's sir? Name. First, yeah, first question. What Tell is your name? name. Which name? First name or surname? First name. No. NOM means your surname. Oh, Okay. name. And this, when Okay. I am typing, this is your first name. Okay. Preno. Okay, sir. Preno. Preno means your first name. Okay, just like Sheetal. First name. Sheetal is your Preno. Yes, sir. एंड जो बेस्ट है वो उसके लिए पूछना होगा तो NOM यूज होगा. Anon. सरनेम Okay. Okay, सरनेम के sir. लिए NOM यूज होता है. Okay. Okay, next. Yesterday which topic we have revised? Kel वाले ना, QUEL. Okay. Yes, sir. Then now I am giving you one small exercise. Just tell me which Kel comes. Okay. To all of you to whom I will ask. Okay, first I should see this small paragraph. Just with I wish के बाद आएगा that को. That. हम्म. मेरा पेन कम है. मेरा पेन तो नहीं था शिवम. ट्रॉन्द्र वर्ब के बाद आपने तेंद्र वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया. वो कॉन्जुगेट थोड़ा ना होगी सेकंड वर्ब. Priya, tell me the meanings. Priya is left. No, she is there. Tell me the meaning of this paragraph. Priya, tell me the meaning. Hello. Hello. Tell me the meaning. Where are you? Sir, I'm here. Actually, I'm speaking, but my mic is off. I forget that. So Tell me the meaning. I wish we don't need cosmetics. We spend so much time and money on cosmetics. And for what? We take them off at night only to put them all on again in the morning. पूरा नहीं लिखा है अभी मैंने. वो तो है ही नहीं. हाँ Put सर, them हाँ off. नाइट Night तक. तक ही लिखा सर है. नाइट तक ओनली लिखा है मैंने. अभी आगे लिखूंगी. यस सर. I wish के बाद that आएगा. Just with QUE means that. QUE. And Bazuan the plus LES लिख दिया आपने. The ही रहेगा. LES नहीं आएगा वहाँ पे. ओके. LES जो कॉस्मेटिक से पहले LES लिखा आपने वो नहीं आएगा. DE plus LES दोनों एक साथ नहीं आ सकते कभी भी. यस सर. It's an expression. Abu are. I'm writing. Sorry, sir. Bazuan the. Then next time it will not. Go from here. Oh, you are saying to your sir, go for it. Your mic is not. To be need of. ये मीनिंग है इसका. सर ये अब और एक्सप्रेशन है ना. यस यस. ये DE जो है वो DE रहेगा हमेशा. ओके सर. We spend so much of time and money on the cosmetics, and for what? We take. उसके बाद एतेंद्र वर्ब को आपने कॉन्जुगेट कर दिया. वो कॉन्जुगेट नहीं हो सकती ना. एंड देन कहाँ गई. कल जो आपने मेरे से कल पूछा था वही तो बता रहा हूँ. हाँ सर. हाँ WhatsApp सर. पे जो. हाँ सर आपने बताया था तो. तो उस वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं कर सकते ना. सेकंड वर्ब है वो. ओके सर. तो फिर क्या लिखूं ट्रॉन्द्र सर. वर्ब यू हैव ऑलरेडी कॉन्जुगेट. ये लिख तो दिया मैंने. देखो तो सही. ओके सर. और नाइट से पहले आला लिखा था मैंने कल WhatsApp में भी. आपने ला को हटा दिया. हाँ सर ठीक है. वैसे इस ट्रॉन्द्र वर्ब के यूज करने की जरूरत ही नहीं है.
सीधा ही आप एतेंद्र वर्ब को कॉन्जुगेट कर सकते थे, Okay. उसकी जरूरत ही नहीं है कॉन्जुगेट करने की, सीधा ऐसे आ जाएगा। आई एम टाइपिंग, ऐसे आएगा सीधा, Okay, sir. सीधा उस वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया। Hmm. नूज एतेइनो अला नुई, बस हो गया। टेक वाली वर्ब का यूज करना वो ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है वहां पे। Okay, sir. Okay, now one exercise I am going to give. You have to put adjective interrogative, QUEL वाले। Yes, sir. First, who will tell? Neha. I'm just typing. Tell me the first one, Neha, please. Tell. Which flower you like? Tell me the answer. Neha, tell the answer. First one. हेलो सर। Hmm. Tell the first answer. सर इसमें ये क्वेश्चन वर्ड वाला है ना? जो कल बताया था, केल वाला, QUEL, ये वाले। या What which? Tell the first answer. कौन से वाला केल आएगा इसमें? QUEL। Why? Why QUEL? सर जो QUELL होता है वो फेमिनिन मैस्कुलिन को देख, नाउन को देख के लगता है ना? मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए? नहीं, उसको मतलब उसको देख के लगता है, फेमिनिन के लिए लगता किसको? है क्या? वो ई वाला। ये वाला दोबारा से बताओ पूरा स्पेलिंग। क्यू QUELLES फेमिनिन प्लूरल वालों के लिए लगता है। इसमें क्या लगेगा, आप ये बताओ सीधा। क्यू वही इसमें QUELL वाला बस। डबल एल, QUELL। यस सर। वाई? QUELS वाला सर। वाई रीजन? मैस्कुलिन प्लूरल है ना ये? मैस्कुलिन फ्लावर्स है या वन फ्लावर है, फ्लावर्स है? फ्लावर्स है। अरे फ्लावर। अच्छा। हम्म। टेल मी, दिस इज वन फ्लावर और मोर? वन। सो टेल मी द आंसर अगेन। जल्दी बताओ। सर QUEL। QUEL। वाई?
Chandan, tell the answer. QUEL, sir. QUEL. QUEL, जो नेहा ने बताया वही वाला. Yes, sir. Why? Reason? Masculine singular, sir. एक flower है ना. Okay, okay, correct. Yes. Sheetal, Yes, sir. Wrong. tell me the answer. QUELLES. QUELLES. Why? Because flower is feminine. Feminine. Singular or plural? यहाँ पर तो सिंगुलर है. Plural. Singular. But as तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? plural, sir. प्लूरल है ये. QUELLE. एस नहीं आएगा. नहीं आएगा कि सर एस नहीं आएगा क्योंकि फ्लावर तो सिंगुलर है और बस उसके आगे AMIS मतलब उसको ऐसा थोड़ा ना देखेंगे, वो तो वर्ब है. इमेज टू लाइक. आपको तो फ्लावर को देख के लगाना है ना. ओके ओके. QUELLE. फ्लावर Why not? फेमिनियन. फेमिनिन. आपको कैसे पता फेमिनिन है? कैसे पता लगा आपको? How do you know that? क्योंकि फ्लावर फेमिनियन है. आपको कैसे पता? मैं ये ई. पूछ रहा एंडिंग हूँ. एंडिंग में आ रहा है इसमें. आर. यस सर. सो फेमिनिन नाउन्स जो होते हैं वो किन लेटर से एंड होते हैं? EION. तो इसमें तो ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना एन है. तो ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है? मैस्कुलिन. तो आंसर क्या आएगा? QUEL. ओके. छाया, Yes, sir. टेल मी द आंसर ऑफ दिस. So flower is exceptional. So it could be feminine and it could be masculine. So answer is Q. फेमिनिन, इट कुड बी मैस्कुलिन, बोथ. Yes, sir. So because it, मतलब ये मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है ये फ्लावर. no, sir, no, sir, it is exceptional. आपने बोला इट इज एन एक्सेप्शनल नाउन, इट इज फेमिनिन, इट कुड बी मैस्कुलिन, ये बोला Yes, अभी sir. आपने. तो इसका मतलब क्या हुआ? Nothing, sir. समझ नहीं आया मुझे. Sir, मतलब ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन या दोनों है? sir, ये feminine है. तो आपने अभी ये बोला इट कुड बी मैस्कुलिन, उसका क्या मतलब था? Sir, because of sir, this is exceptional, na. So I said this. नो, एक्सेप्शनल आपने जो बोला उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ. आपने बोला इट इज एन एक्सेप्शनल नाउन, इट इज फेमिनिन, इट कुड बी मैस्कुलिन. इट कुड बी मैस्कुलिन का मतलब कहने का क्या अभिप्राय है आपका? Nothing, sir. तो आपने ये क्यों बोला इट कुड बी मैस्कुलिन? Sir, it is already masculine. Sir, it is already masculine now. इट इज ऑलरेडी मैस्कुलिन Yes, sir. मतलब So because ये exceptional है. समझाना नहीं आ रहा आपको. Yes, sir. छाया, से express नहीं हो रहा. वाई? Sir. आप समझा नहीं पा रहे हो. Yes, sir. प्रिया, एक्सप्लेन. प्रिया, Yes, sir. Yes, sir. explain. Yes, sir. Tell me the answer and why. So flower is a exceptional feminine singular. So we can put QUELLE. Kel. Correct. So who has given the correct answer?
प्रिया एंड छाया ने थोड़ा बहुत. That others don't know that some exceptional nouns are there in French जिनकी एंडिंग EION से नहीं हो रही होती या हो भी रही होती है. अगर हो रही होती है तो वो उल्टे होते हैं, मैस्कुलिन हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं exceptional nouns. Exceptional nouns means the nouns which don't follow the rules. जो देखने में फेमिनिन लग रहे हैं लेकिन वो फेमिनिन नहीं है, वो मैस्कुलिन हो गए. जस्ट लाइक फ्लावर जो है FLEUR, इसकी एंडिंग हो रही है आर से, तो आर से एंडिंग हो रही है तो इसको होना चाहिए मैस्कुलिन, क्योंकि ये EION से एंड नहीं हो रहा, तो इसको होना चाहिए मैस्कुलिन. बट ये रूल्स के अपोजिट है, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्शनल नाउन्स. एक्सेप्शनल नाउन्स मीन्स जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, उनको हमें याद ही रखना पड़ेगा. आई टोल्ड यू दिस थिंग so many times. Flower is an exceptional noun. Flower masculine नहीं है. Flower is a feminine noun. So आपका आंसर आएगा QUELLE. Clear everyone? Mute करो प्रिया, बहुत शोर आ रहा है. Now clear everyone. If you have any doubt, then ask. Any doubt or next? I'm going to type the next one. Now you will tell me the answer for the next one. Who will tell this? Chaya. Chaya will tell this answer. Yes, sir. I'm typing. Okay. ये एक्सेंट्स की वजह से टाइम लग जाता है टाइप करने में. This one. A bottle number their telephone. So QUEL. Why? So because इसमें नंबर जो है ना, हम्म. so इसमें मैस्कुलिन है. कौन सा वर्ड? so नंबर. नंबर मैस्कुलिन आपको कैसे पता लगा? So because it is, so I can't express, but I know. तो आपने QUEL क्यों बोला? So because I know number is masculine. So your answer is correct. QUEL. Yes, sir. Okay. Yes, sir. QUEL is correct Yes, because numero. The word numero means number. What is your telephone number was the meaning of this question. Numero is a masculine singular noun. yes, sir. That's why. Okay. Yes, sir. Next I'm again typing. Who will tell? Kamal, just see why we are using QUEL. Okay. QUEL, QUELLE, ये सब जो हम टाइप कर रहे हैं, जो पूछ रहा हूं मैं, ये इनका मीनिंग है व्हाट विच इन इंग्लिश, जो क्वेश्चन पूछने के टाइम पर यूज किया जाता है. कौन से वाला यूज किया जाएगा वो मैस्कुलिन और फेमिनिन के बेस के ऊपर पूछा जा सकता है. QUELLE पहले वाले में यूज किया क्योंकि फ्लावर जो था वो फेमिनिन था. तो ये मैस्कुलिन QUEL था. फ्लावर फेमिनिन था, फेमिनिन. तो ये सेकंड वाले में. सेकंड मैस्कुलिन, अभी सेकंड ही तो बता रहा हूँ मैं. सेकंड में न्यूमेरो जो है वो मैस्कुलिन है, इसलिए QUEL आया. मीनिंग वही है व्हाट विच. ओके, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट. Neha will tell this one again.
See this. Tell me the meaning if you can. If you can understand something, tell me what did you understood with this. Anything you know in this sentence. किसी का मीनिंग पता हो तो बताओ. समय. नेहा. Okay. नेहा listening. Yes, sir. कुछ समझ में आया इस सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड कोई भी जो आपको पता हो मीनिंग. No, sir. Ending का पता है बस तू. LIS हमने वर्ब की हुई है ये वाली. प्रिया टेल द मीनिंग एंड फर्स्ट ओनली मीनिंग. Which newspaper do you read? Correct. Now who can tell the answer? Chaya, you know the answer. So QUEL. You are asking or telling? So I'm telling QUEL. Is correct. Yes, sir. Which newspaper read you or do you read? Journal Yes, means sir. a newspaper. Normal masculine noun. Yes, Next sir. one. Shital will tell the next one. Yes, sir. See. Any meaning? So can I? No, no, Sheetal. Okay, sir. Anything you know? To eat. We last one. We or You you? for you foreigner. Hmm. Correct. First one. Which vegetables do you Hmm? eat? Legume means vegetables. Okay. Vegetable. Hmm. Hmm. Now tell which cal comes. Vegetable. कौन से वाला cal आएगा? QUEL. QUEL कैसे आ सकता है? ये तो बहुत ही बेसिक थिंग है. लेग्यूम की स्पेलिंग देखो एंडिंग विद एस हो रही है. एंडिंग विद एस हो रही है इसका मतलब ये प्लूरल है. प्लूरल है तो यानी कि या तो QUELS Yes, sir. आएगा या QUELLES आएगा. इन दोनों में से एक आएगा. तो QUEL आप कैसे बता रहे हो? QUEL. QUEL. QUEL कैसे आ जाएगा? हाउ कैसे? रीजन. Any other knows QUELS? Why? Why QUELS? So vegetables are feminine. So Vegetable. this is for So answer is so QUELLES. Priya. No, sir. Vegetables are masculine. Oh. Answer is QUELS. QU. Oh, ELS. Correct. Okay. Wrong Neha. What have you written? ये तो कुछ है ही नहीं. QUELLS. There is nothing with this spelling. QUELLS.
Now clear? Any doubt, please ask. Now next one. This one who will tell? Chaya. Yes, sir. Tell the answer of this. So sentence meaning students which. So it means You tell. sir. I don't know. It means firstly. Any other who knows? Any other? जिनको मीनिंग पता हो, किसी को पता मीनिंग? किसी को भी नहीं पता? It means to teach. Yes, sir. I get it now. Students teach you. ऐसा क्यों? No. So student. You teach. So which students you teach? So it means which. आंसर बताओ स्टूडेंट्स को. Yes, sir. So यस यस, अब तो पता लग ही गया yes, सबको. sir. Q. आंसर. So Q U. So Q U E L S. These students are male or females? So males. Your answer is wrong. Ending with es है. So yes. क्यों यू देख लो, स्टूडेंट की स्पेलिंग में लास्ट में es आ रहा है, तो फीमेल स्टूडेंट्स है ना. Yes, sir. तो फिर Sorry, sir. one more last. If you have any doubt, please ask. Any other? जिनको भी डाउट है प्लीज पूछ सकते हो आप. This one. Priya, please tell. So meaning Meaning answer both. meaning and answer. Joy is to play. So can I? No, जब आपसे पूछा आप wrong बता रहे हो. Sir, QUELS. Wrong. Soms. First tell me QUEL QUELLES ये वाला जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? एडजेक्टिव इंटरोगेटिव. क्लियर? Yes, sir. ये किन को देखकर हम लगाते हैं? QUEL या फिर QUELS, ये चारों में से कोई एक. किसको देखकर लगाते हैं? Sir, noun को देख के. तो SOMMES जो आप बता रहे हो ये नाउन है? नहीं सर, ये तो वर्ब है. तो फिर आपने ये क्यों बोला SOMMES? So QUELS. Neha, also you have given all wrong answers. जो fill in the blank के बाद लिखा हुआ डे वो है नाउन. उसको देख के आंसर आएगा ना. आप SOMMES तो वर्ब है, वर्ब को देख के आंसर लगा रहे हो तो कहाँ से आंसर सही होगा आपका? सर QUEL. यस, इतना इजी आंसर था ये, तो सबसे इजी आंसर था ये. QUEL.
which day we are on. Today is which day? It means आज कौन सा दिन है, हम कौन से दिन में आज, ये मतलब है इसका. Okay, sir. सबसे इजी आंसर सब रॉन्ग दे रहे हो तुम. और प्रिया यू डोंट नो द वर्ब टू टीच, जो मैंने इससे पिछले वाले सेंटेंस में वर्ब दी थी ऑसिन में. Yes, sir. तो आपको पता ही नहीं था, आपने तो इस वर्ब से सेंटेंस भी बनाया था 2-4 दिन पहले. Yes, sir. बनाया था. तो फिर आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता. मैंने वही वर्ब दी थी, आपसे पूछा भी है मीनिंग, आपने मीनिंग ही नहीं बताया इसका आज. और सेंटेंस आपने 2-3 दिन पहले इससे बनाया था, तो आपने सेंटेंस कैसे बनाया फिर, अगर आपको इस वर्ब का मीनिंग ही नहीं पता तो. नाउ टेल. सर मैंने लिख रखी है ना, तो मैं जितनी लिखती हूँ तो मुझे दिमाग में आ जाती है थोड़ी थोड़ी, तो धीरे धीरे करके आएगी वो, तो इसलिए याद ही नहीं हो पाती है ज्यादा. तो आप सेंटेंस, तो आपको 50 सेंटेंस तो रोज बना नहीं रहे, 10 सेंटेंस Yes, बना sir. रहे हो. उसमें से अगर आप 10-15 चीजें ढूंढ रहे हो, तो आपको मीनिंग पता होने चाहिए ना इन सबके. Yes, sir. नहीं तो फायदा ही क्या, 4 दिन बाद आपसे वही चीज पूछे जा रही है तो आपको मीनिंग ही नहीं पता. कमल, कमल, I just typed Yes, for sir. you. Yesterday you were absent. I typed Yes, sir. like this. Today again ये तेरे लिए टाइप किया मैंने. QUEL, QUELLE, ये सब इन चारों का मीनिंग है what which. ओके, Yes, sir. ठीक है. Yes. फर्स्ट वाला QUEL जो आएगा वो मैस्कुलिन सिंगुलर से पहले आएगा. सेकंड वाला फेमिनिन सिंगुलर से पहले. थर्ड वाला मैस्कुलिन प्लूरल. और थर्ड वाला फेमिनिन प्लूरल नाउन से पहले. ठीक है, क्लियर. Okay, sir. फर्स्ट Yes, दो sir. वाले मैस्कुलिन सिंगुलर फेमिनिन सिंगुलर, और बाद वाले दो वाले दोनों के आगे एस लगा दिया लास्ट में, तो वो बन गए मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल. ये हमेशा हम क्वेश्चंस बनाने में यूज करते हैं इनको, व्हाट विच को. तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे व्हाट विच से, तो इन चारों में से आपको कोई एक यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू द नाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होगा. बिकॉज दिस टॉपिक नेम इज एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. तो ये क्वेश्चंस मेकिंग में ही आप बना सकते हो, इनको यूज कर सकते हो. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये दिस इज द टॉपिक नेम. प्लीज कॉपी दिस और स्क्रीनशॉट जो भी आपने लेना है, और इसको नोटबुक में नोट करो, अगर आपकी नोटबुक में नहीं है तो. है तो अच्छी बात है. सो मेक मोर सेंटेंसेस while using this topic. So now I want everyone to make sentences with these topics: adjective, interrogative, possessive adjectives, demonstrative adjectives, definite, indefinite articles. इन सबको यूज करते हुए everyone has to make sentences, at least minimum 10 sentences on Monday. Neha, please revise, start revising everything. You have done all wrong answers today. आप नाउन को इन देख रहे हो कि नाउन के एंड में क्या है, आप मैस्कुलिन नाउन्स के आगे प्लूरल वाले ऑप्शंस लिख रहे हो. नाउन मैस्कुलिन है तो QUEL आएगा, फेमिनिन सिंगुलर है तो QUELLE आएगा. अगर दोनों में से कोई भी प्लूरल है तो SS दोनों के आगे लग जाएगा. Then merci beaucoup. Au revoir. Goodbye. Sir, Thank you. sir, See you on. sir, Yes, 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 yes. I have a question. Yes, So, like, yes. when sir, I will say I meet, so sir, I will say I rendezvous, the rendezvous. Rendezvous भी, rendezvous तो अपॉइंटमेंट के लिए यूज होता है. So, sir, meet के लिए क्या यूज करेंगे आई के साथ? मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स के लिए. Okay, sir. मीट के लिए rencontre verb. Okay, sir. This verb. Rencontre is ER ending verb. Yes, sir. Rencontre means to meet. तो आप ऐसे लिख सकते हो, I meet. Je te rencontre. I meet you ऐसे लिखेंगे इनफॉर्मल में.
Je vous rencontre. Expliquez-moi. Yes, Formal sir. में. Je te rencontre. So ये informal में है ना? Informal. Je vous rencontre. Formal. Thank The वाला informal, वो वाला formal. Yes, sir. Merci beaucoup. Okay. Merci Once au revoir. more. Merci beaucoup. बहुत सारे Make more sentences. Bonjour में. Bonsoir. That's it. मित्सू का मतलब होता है सर। हाँ, तो बकवास मत करने से फालतू। फ्रेंच वाला सारा सुनते हैं। हैं? फ्रेंच वाला ना यहाँ पे बोलते हैं पागल बना रहे हो हमारा फ्रेंच बोलो। हाँ, मेरा भाई कह रहा है ना मित्सू मित्सू क्या कर रही है मेरे सामने। फ्रेंच का मीनिंग अलग ही होता है ना, हिंदी नहीं पता। मैंने बोला था मित्सू का मतलब सर होता है हमारे में। क्या? हाँ, क्या मीन्स होता है? सर को क्या कहते हैं? मित्सू। और अगर हमें कहना पड़ेगा मिस यू तो फिर क्या कहेंगे? मिस यू बोलना हो तो मिस यू वो वाला सर से पूछ। हाँ मतलब मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ लाइक वाला। रुक जाओ, हाँ हाँ बता हाँ। रही हूँ। बताओ गूगल पे। गूगल आई मिस ट्रांसलेटर। यू। मैं भी देखती हूँ। अरे जो भी है। आई मिस यू। क्यों मैं मॉन्केस क्यों मैं स्पेलिंग बताओ। TU फिर स्पेस ME माइक ME फिर स्पेस MANQUES। इसको क्या पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन? टू क्यों मैं मान क्यू। ओके थैंक यू सो मच। एन की टू मैं प्रोनाउंसिएशन भी मान होती क्यू। है मान क्यू। वही तो। हम्म, ओके बाय। बाय बाय छाया। सी यू इन इवनिंग। छाया हेलो हेलो हेलो। यस प्रिया। विल हाँ यू प्रिया। टेक क्लास इन इवनिंग? कम्युनिकेशन क्लास। या विल यू टेक? इफ आई विल फ्री सो आई विल टेक क्लास। वेयर आर यू बिजी? मतलब आई एम बिजी विद माई मॉम। बट हाँ, विच वर्क? इन किचन वर्क। ओके 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 बाय। ओके बाय गुड इवनिंग। हैव अ नाइस इवनिंग। यू टू। थैंक यू।